Okay, so we were doing finding derivative of trigonometric function using first principle, and we have seen sine, cosine, tangent ka derivative. Now we'll do some questions from the exercise. I think we did up to question number 2 right here. इधर तक हमने किया ना, isn't it? Hello, response तो दे दो. Hello. Yes, sir. Yeah. So shall we go to next question? Like f of x is equal to देखो, f of x is equal to 1 by x square. इसका डेरिवेटिव निकालना. नॉर्मल में लाइक फॉर्मूला हमारे पास है 1/x² को हम ऐसे 1/x² मतलब क्या हो गया, x⁻⁻2. सो डेरिवेटिव f डैश x, x⁻n का डेरिवेटिव n इंटू, सो -2 इंटू n इंटू x⁻n-1. सो ऐसे मिलेगा -2 x⁻−3. Minus. तो आंसर हो गया -2/x⁻3. दैट इज आंसर, दैट्स द डेरिवेटिव. बट इन्होंने इधर क्या बोला, फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने के लिए बोला. फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है तो हमें फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना ही पड़ेगा. ऐसे क्वेश्चन में आया है तो अगले साल का कोई फर्स्ट प्रिंसिपल का कोई झंझट नहीं है, यू कैन डायरेक्टली डू. बट हियर सो डेरिवेटिव का डेरिवेटिव मतलब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट. सो एफ डैश एक्स, हमारे पास फॉर्मूला था लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So which is equal to limit h goes to 0 f of x plus h मतलब सॉरी f of x के अंदर x के जगह x plus h देना. सो x के जगह x plus h दे दिया. सो 1 plus x plus h the whole square minus f of x. f of x is 1 by x square the whole divided by h. Okay, so this is equals limit h goes to 0, cross multiply x square into 1 x square minus x plus h the whole square into 1 x plus h the whole square, the whole divided by x plus h the whole square into x square है वो डिनोमिनेटर में आएगा into h. So which is equal to limit h goes to 0 डिनोमिनेटर में x plus h the whole square into x square into h. वैसे ही ऊपर x square minus a plus b the whole square is a square plus 2ab plus b square. So this will become इधर से इधर then next year limit h goes to 0 x square, you can see this x square minus x square cancel हो जाएगा, then minus 2xh minus x square है. So इधर ठीक है divided by x plus h the whole square into x square into h, which is equal to limit h goes to 0. You can take h common, minus is there, you can take h common, बाकी 2h minus x square आएगा divided by x plus h the whole square into x square into h. So ये h कट हो जाएगा. अभी h goes to 0 दे दो, h goes to 0 दे देंगे तो आपको मिलेगा -2x ऊपर, नीचे आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर. सो एक x कट हो जाएगा, बाकी मिलेगा -2 डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब. गॉट इट? आया समझ में? Is it clear? Any doubt? If you have any doubt, just ask. No, sir. क्लियर है ना? सो देखो थोड़ा सा लंबा प्रोसेस है. फर्स्ट प्रिंसिपल फॉर्मूला अप्लाई करके करना पड़ेगा. डायरेक्ट आप करेंगे तो आपको एक ही स्टेप में आंसर मिल जाएगा. Okay, now I'm going to clear this. Now go to the next question. X plus 1 by
दोनों में आपको दिखाएंगे, दैट विल बी इजी फॉर यू. एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन. एक तो मेथड सो फर्स्ट प्रिंसिपल ही बोला है, बट हम जो क्वेश्चन का पढ़ाई किया था यू बाई वी डेरिवेटिव, सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर स्क्वायर. सो उसी फॉर्मूला अप्लाई करके करेंगे तो डिनोमिनेटर इंटू दैट इज x minus 1 into derivative of numerator which is x plus 1 minus numerator into x plus 1 into derivative of denominator derivative x minus 1 the whole divided by denominator square x minus 1 square. Quotient formula apply किया, denominator into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator divided by denominator square. So x minus 1 into derivative of x plus 1. So it's a sum of two functions. So derivative of first plus derivative of second. Derivative x is 1. Derivative x is 1. Okay. And so ये इसका हो जाएगा 1 plus derivative 1 is 0. 1 plus 0. Similarly here x minus 1 का derivative x is 1 minus derivative 1 is 0. So into 1 आ रहे. So x minus 1 into 1 minus x plus 1 into 1 divided by x minus 1 the whole square. So x minus 1 minus x, so x minus x cancel हो जाएगा, minus 1 minus 2 divided by x minus 1 the whole square. So answer हो गया, this is the answer, but this is using डायरेक्ट मेथड. क्वेश्चन रूल अप्लाई किया, बट इन्होंने इधर हमें बोला है कि फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करो. सो आज सो फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना है तो फॉर्मूला इज एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट h goes to 0 f of x plus h minus f of x divided by h. So that is equals limit h goes to 0 f of x plus h मतलब f of x के जगह एफ ऑफ एक्स में एक्स के जगह एक्स प्लस एच देना. सो आपको ऐसे देना पड़ेगा, एक्स के जगह एक्स प्लस एच, सो एक्स प्लस एच प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स दैट इज एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन द होल डिवाइडेड बाई एच. अभी कुछ नहीं, सिर्फ आपको ओपन करके जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, बाकी सब सेम है, just multiply it, that's all. Limit h goes to 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन. थोड़ा सा लंबा है बट कोई टेंशन नहीं, सिंपल स्टेप बाय स्टेप करना है, दैट्स ऑल. माइनस एक्स प्लस वन इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस एच माइनस वन द होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन है और डिनोमिनेटर में आएगा इंटू एच, इतना डिनोमिनेटर में आएगा. सो डिनोमिनेटर वैसे छोड़ देना. लिमिट एच गोस टू जीरो, डिनोमिनेटर को क्या कर देना एक्स प्लस एच माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इंटू एच वैसे छोड़ दिया. बट ऊपर तो आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. तो सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो एक्स इंटू फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स इंटू सभी टर्म को मल्टीप्लाई, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर देख लेना, एक्स इंटू एक्स then x into minus 1, so minus x. Now h say I say h into x, so plus hx, h into minus 1 minus h plus 1 into x plus 1 into minus 1 minus 1. Now so a minus is there, so keep that in mind. Again x into x square minus outside, so minus x square, x into h xh minus outside, so minus xh, x into minus 1 minus x but minus outside, so it is plus x, 1 into x plus but minus is outside, so minus x, 1 into h but minus is outside, minus h, 1 into minus 1 minus 1 but minus 1 is out, minus is outside, so plus 1 हो गया. अभी आपको सिंप्लीफाई करना, देख लेना कुछ कैंसिल होते हैं क्या.
सो आप देखेंगे तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, देन आप देखेंगे तो इधर आपको प्लस एक्स एच था, इधर माइनस एच एस था, वो भी कैंसिल हो गया। एंड इधर देखेंगे तो एक्स माइनस एक्स था, कैंसिल हो गया। इधर एक इधर कुछ माइनस एक्स है, इधर प्लस एक्स है, कैंसिल हो गया। इधर एक माइनस वन है, प्लस वन है, कैंसिल हो गया। सो आपको अभी मिलेगा इधर एक माइनस एच बाकी है, इधर भी एक माइनस एच बाकी है। सो आपको मिलेगा लिमिट h goes to 0 minus 2h divided by x plus h minus 1 into x minus 1 into h. And you can see this h will cancel. Now you can directly apply limit h goes to 0 दे दो, minus 2 ऊपर divided by x को 0 दे देंगे तो x plus 0 minus 1 is x minus 1 into x minus 1. So that is nothing but minus 2 divided by x minus 1 the whole square. The same thing here also हमें मिला था. See, got it? आया समझ में? Yes, sir. Yeah. So that's the first principle method. मैंने दोनों मेथड से आपको दिखाया क्योंकि आप फेमिलियर होना चाहिए इसलिए. Now next question देखो. For the function f of x is equal to ये क्वेश्चन का बाकी था. मैं क्या चाहिए था? Okay, prove that prove that f dash 1 is equal to 100 f dash 0. That means derivative f dash x मतलब derivative, f dash 1 मतलब derivative का value at x is equal to 1 में. That is same as 100 times derivative का value at x is equal to 0. So anyway सबसे पहले आपको f dash x करना है, f dash s निकालना है. So इधर तो फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करना तो बहुत ही मुश्किल है. So फर्स्ट प्रिंसिपल अप्लाई करने का भी कोई जरूरत नहीं, भी उन्होंने ऐसे बोला भी नहीं. So देखो it you can see sum of functions, first function plus second function plus third function plus etc plus you can see it's a sum of function, right? So हमें पता है कि u plus v derivative is first का derivative plus second का derivative, isn't it? So now first term का derivative, okay, derivative of a sum is a sum of the derivative, so we just find the derivative and add it, that's all. अभी then एक ऐसे भी देखा था c into constant into a function, उसका डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट इनटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन. सो इधर आप देखेंगे तो 1/100 कांस्टेंट है फर्स्ट में, उसको कांस्टेंट वैसे रखा 1/100. देन x टू द पावर 100 का डेरिवेटिव, x टू द पावर n का डेरिवेटिव हमें पता है n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 है. सो हो जाएगा 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, राइट? isn't it? Plus next term में x to the power 99 divided by this is the term, so 1/99 it is constant. बाकी x to the power 99 है, उसका derivative is 99 into x to the power 98, correct? Plus etc. लास्ट में x square by 2 उधर 1/2 constant है, तो constant you can take outside, x square का derivative 2x plus x का derivative 1 प्लस 1 का डेरिवेटिव 0, डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0. सो आपको एफ डैश एक्स मिलेगा 100 कट हो जाएगा, बाकी आपको मिलेगा एक्स टू द 99 प्लस 99 कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू द पावर 98 प्लस एक्सेट्रा प्लस आपको मिलेगा लास्ट में एक्स प्लस 1, करेक्ट? दिस इज योर एफ डैश एक्स. ओके, अभी हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए दो वैल्यू, एक एफ डैश वन चाहिए. एफ डैश वन मतलब एक्स के जगह वन दे देना. सो 1 टू द पावर 99 1 प्लस 1 टू द पावर 98 1 प्लस एक्सेट्रा प्लस 1 प्लस 1. हाउ मेनी वंस? टेल मी हाउ मेनी वंस?
आर यू देयर? 100. 100 वंस, बिकॉज आप देख सकते हैं इधर x, x मतलब x टू द पावर 1, x टू द पावर 2, ऐसे x टू द पावर 99, सो 99 1 हो गया, देन इधर एक 1 एक्स्ट्रा था, सो 100 वंस, सो 100 1 ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 100. अभी f डैश 0, आप x को 0 दे देना, सो क्या मिलेगा 0 प्लस 0 प्लस एक्सेट्रा प्लस 0 प्लस 1, कितना मिलेगा 1. अभी देखो 100 इंटू एफ डैश 0, that is 100 into 1, which is 100, and that is 100. nothing but your f dash 1. That is what to prove. उन्हें हमें बोला कि प्रूव करो f dash 1 is same as 100 into f dash 0. प्रूफ किया f dash 1 is same as 100 into f dash 0. Got it? Okay, I hope you understand. We'll go to the next question now. See this. Find the derivative of this function. So here question number f of x, देखो f of x is question number 6. F of x is, your function is x to the power n plus a into x to the power n minus 1 plus a square into x to the power n minus 2 plus etc plus a to the power n minus 1 into x plus a to the power n. एक फंक्शन दिया तो हमें चाहिए फाइंड द डेरिवेटिव, सो हमें तो f डैश x चाहिए, f dash x for some fixed real number a. So anyway, what about it? First of all, हमें f dash x चाहिए. So f dash x. So it's the sum of different functions. है ना? This first function, this is another function plus another function. So derivative of a sum is the sum of the derivative. So एक एक का derivative निकाल के add कर देना. X to the power n का derivative x to n into x to the power n minus 1 plus second में constant है, constant into a function. You can take that constant outside, constant into then x to the power n minus 1 का derivative. So it is n into, so n minus 1 into x to the power n minus 1 minus 1, that is n minus 2 plus a square constant outside, x to the power n minus 2 का derivative n minus 2 into x to the power n minus 2 minus 1, n minus 2 minus 1, that is n minus 3 प्लस ऐसे जाएगा जाएगा लास्ट में a to the power n minus 1 कांस्टेंट दे, then into x, x का डेरिवेटिव 1, then plus a to the power n कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव 0. हो गया आंसर, दैट इज f dash x. आया समझ में? ओके, एंड आपको ये में चाहिए तो कोई एक पर्टिकुलर नंबर में चाहिए तो सो क्या कर देना, x को आप क्या दे देना, ये दे देना. यू हैव टू गिव x इज इक्वल टू ये, दैट्स ऑल. क्लियर? No, sir. या किधर समझ में नहीं आया बताओ मुझे. सर डेरिवेटिव के स्टेप में. डेरिवेटिव देखो, दिस इज अ गिवन फंक्शन, राइट? अभी वो Yes, sir. देखो अलग अलग फंक्शन का सम में डेरिवेटिव ऑफ Yes, sir. सम, जैसे u प्लस v, जैसे u प्लस v प्लस w, जितना भी हो उसका डेरिवेटिव मतलब फर्स्ट का डेरिवेटिव प्लस सेकंड का डेरिवेटिव प्लस थर्ड का डेरिवेटिव, ऐसे जाएगा. अभी फर्स्ट Yes, का sir. डेरिवेटिव इधर x टू द पावर n का डेरिवेटिव n into x to the power n minus 1 प्लस Yes, sir. second a into x to the power n minus, a is constant, so a into then at x to the power n minus 1 का डेरिवेटिव n minus 1 into x to the power n minus 2. ओके, Yes, sir. वैसे हर टाइम का डिवाइड लास्ट में आएंगे तो a टू द पावर n minus 1 इंटू अब कांस्टेंट आउटसाइड आ गए उस टाइम में x का डेरिवेटिव 1, डेरिवेटिव x इज 1, so a to the power n minus 1 into 1, a to the power n minus 1.
and plus last term is a to the power n. A to the power n is constant. Derivative of constant is 0. Got it? Yes, sir. That's all. Okay, clear? Yes, sir. Yeah. So अभी आपको अगर मान लीजिए उन्होंने बोला कोई भी फिक्सर नंबर एफ डैश, अभी एफ डैश 5 चाहिए, क्या करना पड़ेगा? इधर एक्स के जगह क्या देना पड़ेगा? 5 देना पड़ेगा, राइट? अगर कोई भी नंबर 6 चाहिए तो एक्स के जगह 6 देना पड़ेगा, 7 चाहिए तो एक्स टू द पावर एक्स के जगह 7 देना पड़ेगा, ऐसे वैसे. Okay, shall we move to next question now? Yes, sir. Okay. Now, इधर उन्होंने फिक्स्ड रियल नंबर बोला, मतलब ए इज ए कांस्टेंट बोला है. फिक्स्ड रियल नंबर मतलब ए इज ए कांस्टेंट. सो हियर भी देखो, फॉर सम कांस्टेंट ए एंड बी आर कांस्टेंट. उन्होंने बोला है कि ऑलरेडी बोला है कि ए एंड बी आर कांस्टेंट्स. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ x minus a into x minus b? So your function is x minus a into x minus b. ओके, सो अलग अलग तरीके से आप कर सकते हैं. एक तो मैं क्या करूंगा, इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं. u इंटू वी, u इंटू वी का डेरिवेटिव क्या था? डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड. एक एक स्टेप में एक एक का डेरिवेटिव निकाल के जाना. आए समझ में? जैसे u इंटू वी इंटू डब्ल्यू, उसका डेरिवेटिव हो तो u डैश डेरिवेटिव फर्स्ट वी डब्ल्यू प्लस u इंटू डेरिवेटिव ऑफ वी यू वी डब्ल्यू. ऐसे हम एक एक स्टेप में एक एक डेरिवेटिव निकाल के जाना है. सो इसको अलग अलग तरीके, इसको कितना भी तरीके, जैसे एक तरीका प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे. एफ डैश एक्स फर्स्ट इंटू एक्स माइनस ए का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड प्लस फर्स्ट इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव. गॉट इट? आया समझ में? Yes, sir. Yeah. So now x minus a का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 minus derivative of a constant 0. So it is 1 into x minus b plus x minus a into x minus b का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 minus b का डेरिवेटिव 0. So 1. So आपको मिलेगा x minus b plus x minus a. That is x plus x 2x minus a minus b मिलेगा. So that is derivative. प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया. अंडरस्टूड ना? दूसरा भी मेथड है, लाइक आप x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी को आप ऐसे लिख सकते हैं. यू कैन मल्टीप्लाई. आप ऐसे लिख सकते हैं, इट इज एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए बी. नाउ फाइंड द डेरिवेटिव. एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस बी एक्स का डेरिवेटिव बी कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस ए एक्स का डेरिवेटिव ए कांस्टेंट इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1 प्लस ए बी इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव इज 0. तो वैसे भी आपको मिला 2x माइनस बी माइनस ए, सेम थिंग. क्लियर? अंडरस्टूड? हेलो, डिड यू अंडरस्टूड? Yes, sir. या सो दो आप कोई भी मेथड से आप कर सकते, इट इज अप टू यू. आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट वी कैन डू इट इन एनी वे. लाइक दूसरा एक देखो, योर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी द होल स्क्वायर. इसको ऐसे लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर बी इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी. राइट? नाउ डेरिवेटिव एफ डैश एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, उसका डेरिवेटिव फर्स्ट का डेरिवेटिव इंटू सेकेंड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस फर्स्ट इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सेकेंड का डेरिवेटिव ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव. करेक्ट? सो
अभी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी का डेरिवेटिव फर्स्ट अभी उसमें से टू फंक्शन का सम है. फर्स्ट फंक्शन कांस्टेंट ए इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, so 2ax प्लस b डेरिवेटिव b कांस्टेंट इज 0, so 2ax into ax square plus b plus ax square plus b into again ax square plus b का डेरिवेटिव हमने देखा 2ax, so आपको मिलेगा 2 times, it is 2 times, that is 2 times 2ax into ax square plus b. So in other words आप ऐसे बोल सकते हैं 4ax into ax square plus b. Okay, and if you want you can expand a f of x is equal to ax square plus b the whole square. So अब इसको फर्स्ट का स्क्वायर that is a square x to the power 4 plus 2ab 2 into ax square b plus b square ऐसे लिख सकते हैं. So now आपको डेरिवेटिव चाहिए f dash x. फर्स्ट का डेरिवेटिव a square is constant, then x to the power 4 का डेरिवेटिव 4x cube plus 2ab is constant, x square का डेरिवेटिव 2x plus b square is constant, डेरिवेटिव is 0. so आप देखेंगे तो इसमें से 2 into 2 4a you can take common outside, 4ax you can take 4ax common outside. so if you take 4ax common बाकी आपको मिलेगा ये एक्स स्क्वायर प्लस बी. देखो सेम आंसर आपको मिला दोनों तरीके से किया तो भी. क्लियर? आर यू अंडरस्टैंडिंग? रोहिणी, संकेत, Yes, sir. you're getting now? Okay, fine. So I will tell you one more method for this. उसको बोलते हैं, आपको नेक्स्ट ईयर पढ़ाई करने के लिए है, उसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं. इसमें से चेन रूल मतलब ये देखो इट इज ऑफ द फॉर्म x टू द पावर n फॉर्म, राइट? x टू द पावर, ये x टू द पावर n फॉर्म में है ना. x के जगह क्या आया? ax स्क्वायर प्लस b समथिंग टू द x टू द पावर n फॉर्म में है ना, isn't it? सो हम उसी फॉर्म में फॉर द टाइम भी हम इसको वैसे कंसिडर करेंगे x टू द पावर. सो देन हम क्या करना पड़ेगा, x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. सो उसी हिसाब से इट इज 2 इंटू एक्स के जगह ax स्क्वायर प्लस b टू द पावर n माइनस 1. ओके, राइट? अभी हमें क्या करना, जो x जैसे हमने कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना, दैट्स ऑल. उसको बोलते हैं चेन रूल बोलते हैं. हमने ये देखना इट इज समथिंग ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर n फॉर्म में. सो फिलहाल हम उसको x टू द पावर n फॉर्म में पकड़ेंगे. x टू द पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1. सो इसका डेरिवेटिव 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी द होल टू द पावर 2 माइनस 1. देन उसके बाद हम जो x सिंगल टाइम कंसिडर किया था, इधर हमने ए एक्स स्क्वायर बी को ऐसे सिंगल एक्सप्रेशन कंसिडर किया था, उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना. सो दिस इज 2 इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी, वैसे ही देन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ये कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x प्लस बी कांस्टेंट डेरिवेटिव इज 0. so 2ax plus 0 is 2ax, so 2ax into 2 into 2 4ax into ax square plus b. ऐसे कर, दिस इज, इसको बोलते हैं चेन रूल. क्लियर? आया समझ में? ओके, Yes. या और एक बार एक्सप्लेन करना है क्या चेन रूल? चेन रूल इज अ शॉर्टकट मेथड, a trick.
सो क्या करना है, वो फंक्शन का फॉर्म देखना, इट इज ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर एन फॉर्म में. सो फिलहाल हम कुछ समय के लिए इसको एक ही टर्म कंसिडर करें. विल जस्ट अस्यूम दैट दिस इज वन एक्सप्रेशन से सम एक्स, ऐसे अस्यूम करेंगे. सो इट इज एक्स स्क्वायर फॉर्म, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, दैट इज वाई इट इज 2x उसका डेरिवेटिव. देन हमने जो एक्स स्क्वायर एक्स के जगह सिंगल एक्सप्रेशन जैसे कंसिडर किया था उसका डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई करना. सो दैट इज वाई वी आर मल्टीप्लाइंग विद डेरिवेटिव ऑफ ax square plus b. Clear? Okay. So then x minus a by x minus b ये वाला. So derivative, इसका derivative चाहिए. So it is of quotient rule. So denominator into x minus b into derivative of numerator minus numerator into derivative of denominator, the whole divided by denominator square. So x minus b into derivative of x minus a, derivative x is 1 minus derivative of constant, a is constant, it is 0. So 1 minus 0, 1. So it is into 1 minus x minus a into derivative of x 1 minus derivative of b 0. So into 1, the whole divided by x minus b the whole square. So x minus b minus x minus a minus x plus a divided by x minus b the whole square. So that is a minus b divided by x minus b the whole square. Got it? The remaining all questions we will do tomorrow, and tomorrow you will finish this chapter. So tomorrow you must present in the class. Okay? Yes, sir. See you then tomorrow. Take care. Bye bye. Thank you, sir. Okay, bye bye.